Now, if x naught is not the true root, then naturally there will be some error. So suppose the error is h, it means that by adding this error to x0, we shall get the correct value of the root. So the correct value of the root is guess plus error. Okay, so x naught plus h. This is the correct value of the root. And if x naught plus h is the correct value of the root, then x naught plus h should satisfy the equation. So we must have f of x naught plus h is equal to 0. Okay. Now expand it by Taylor series. So what we will get is fx0 plus h f dash x0 plus h square by factorial to f double dash x0 and so on up to such terms, sum of such terms, and then we'll get this will be equated to 0. ये पार्ट समझ में आया? कुछ नहीं किए, टेलर्स एक्सपेंशन किए. x0 एक गेस ले लिए, उसमें मान लो एरर हुआ h, तो एरर को ऐड कर देंगे x0 में, तो हमको ट्रू रूट मिलेगा. अगर ट्रू रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो f of x naught plus h must be equal to 0. x naught is the guess and h is the error. So when the error is added to the guess value, I get the true value. So x naught plus h is the true value, therefore it should satisfy the equation. And so we must have f of x naught plus h is equal to 0. And when this is expanded using Taylor series, what I get is fx0 plus h f dash x0 plus h square by factorial 2 f double dash x0. उसके बाद वाला टर्म क्या होगा? h cube by factorial 3 f triple dash x0 and so on. This should be equal to 0. Now what we mean by f dash x0? F dash x0 is the differential coefficient of fx with respect to x at the point x is equal to x0. Mathematically, f dash x0 is equal to dfx by dx at the point x is equal to x0. Similarly, f double dash x0 is d square fx by dx square at the point x is equal to x0. Okay, like that. Now, since h is small, error is small, so we can neglect higher powers of h. Power of h greater than or equal to 2 are neglected. And when we neglect higher powers of h, what we get is f of x0 plus h of f dash x0. This is equal to 0. And after simplifying, we get fx0 is equal to minus h f dash fx0, or h is equal to minus f of x0 divided by f dash x0. Clear? Now you see, this is not the proper value of the error, because we have neglected some terms. We have neglected terms higher than 2 and then obtained this result. So this is not the accurate value of the error. If I knew the accurate value of the error, then I would add it to x naught and I would get the true value of the root. But accurate value of the error I don't know. So I have got an approximate value of the error committed, and that is obtained by neglecting higher powers of h higher than 2. I mean 2 and higher. 2 and above powers of h are neglected. ठीक है, अगर एरर स्मॉल है तो हायर पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो करके हम h का अप्रोक्सीमेशन निकाले. अगर h का सही वैल्यू पता होता हमको, तो उसको x नॉट पे ऐड करने से वही रूट मिल जाता. लेकिन h का हमको सही वैल्यू नहीं मिला. h का एक रफ वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको मिला है, जो कि टर्म सब को नेग्लेक्ट करके आया है. h का हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करके आया है. तो जो भी हो, हमको h का कुछ पार्ट तो मिला, उसी को अगर x नॉट में ऐड कर देंगे तो हमको एक बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा. So whatever value of h that we have obtained, although it is approximate, it is to be added to x naught to give me a better approximation, and I call this better approximation x1. So x1 is equal to x naught minus f of x0 by f dash x0. ठीक है? Are you following me what I am doing? Now
when x1 is our next approximation, again some error is committed. Suppose this error is r. Suppose this error is r. Then once again adding r to x1, I should get the true value of the root. Therefore, f of x1 plus r should be equal to 0. Now again you expand it by Taylor series. What you will get is f of x1 plus r f dash x1 plus r square by factorial 2 f double dash x1 and so on is equal to 0. So once again, since error is small, we can neglect higher powers of r. 2 and higher powers of r are neglected. So what I get is f of x1 plus r of f dash x1 is equal to 0, which implies f of x1 is equal to minus r f dash x1, and from this we get r is equal to minus f of x1 divided by f dash x1. Now again adding this value to x1, I get a better approximation which I call x2. So x2 is equal to x1 minus fx1 divided by f dash x1. Proceeding in this manner, our formula for Newton-Raphson method will be xn plus 1, n plus 1th approximation will be the nth approximation xn minus f of xn divided by f dash xn. This is the formula for Newton-Raphson method. Xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash xn. And the process will be repeated until two sufficiently closed values of adjacent roots are obtained. I mean, adjacent approximations of roots are obtained. The process will be repeated until xj and xj plus 1 are sufficiently close. That means their numerical difference is less than epsilon, where epsilon is a small predetermined positive number. So you may take epsilon as 0.001. तो आइटरेशन तब तक चलता जाएगा जब तक दो सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन आपस में बहुत करीब नहीं हुआ, तब तक चलते रहेगा. जब हो जाएगा तब रुक जाएगा. तो कितना करीब होने से उसको करीब मानेंगे, उसके लिए एप्सिलॉन को पहले डिसाइड कर लेंगे, जो कि एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर होगा. तुम 0.001 भी ले सकते हो. जब दो सक्सेसिव रूट एप्रोक्सीमेशन का वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, तब हम रुकेंगे, नहीं तो ऐसे ही करते रहेंगे. आइटरेशन चलते रहेगा. ठीक है, समझ में आ गया? मैथमेटिक्स समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो. देख लो एक बार. Look at the mathematics, all of you. Anyone having any doubt in any particular step, you can ask. एक स्टार्टिंग गेस से शुरू कर रहे हैं, जिसको एक्स नॉट बोल रहे हैं. उसमें हमको एरर हुआ एच. ठीक है, वो एच का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको मिल गया, x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाई एफ डैश x0. उसको ऐड कर दिया हम x0 में, सॉरी माइनस एफ x0 बाई एफ डैश x0. ये h का वैल्यू निकला. उसको जब x नॉट में ऐड किए तो हमको आया x नॉट माइनस एफ ऑफ x0 बाई एफ डैश x0. ये हम इसको x1 बोल दिए. ये बेटर अप्रोक्सीमेशन हुआ कंपेयर टू x नॉट. अब अगर x1 अप्रोक्सीमेशन है और यहाँ पे मान लो एरर कमिट हो रहा है r, तो x1 plus r is the true value of the root, so we must have f of x1 plus r is equal to 0. उसको फिर टेलर सीरीज से एक्सपेंड किए और हमको यहाँ पे जो एरर कमिट कर रहे हैं r, उस एरर कमिट करने का, उस एरर का एक अप्रोक्सीमेशन मिल गया. वो कितना आया? माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1. इसको x1 में जोड़ देंगे तो हमको अगला अप्रोक्सीमेशन x2 मिल जाएगा. इसी तरह चलते रहेंगे जब तक कि दो
सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, रूट का अप्रोक्सीमेशन आपस में बहुत करीब ना हो जाए तब तक चलते रहेंगे। So anyone having doubt in the mathematics part of Newton-Raphson method? If not, then I will explain the geometrical part. ठीक है, समझ गए हो? इसका geometrical part क्या है? Actually हम कर क्या रहे हैं? हम कर यही रहे हैं, कर हम लोग यही रहे हैं कि जो तुम गेस लिए, एक्स नॉट जो गेस लिए, उस गेस वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एफ ऑफ एक्स नॉट निकाल लो। निकालने के बाद तुम एब्सिसा में एक्स नॉट को रखो और एफ ऑफ एक्स नॉट को ऑर्डिनेट में रखो। रख के जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट कर्व में कहाँ पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट कर्व का ही कोई पॉइंट होगा, क्योंकि एक्स नॉट तो एक्स एक्सिस के अलोंग कहीं पे तुम जा रहे हो किसी डायरेक्शन में। एफ ऑफ एक्स नॉट जो है, क्योंकि उस फंक्शन पे तुम एक्स नॉट का वैल्यू कैलकुलेट किए हो, इसलिए तुमको कर्व का ही एक पॉइंट मिलेगा जो कि एफ ऑफ एक्स नॉट को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। उसका ऑर्डिनेट जो होगा एफ ऑफ एक्स नॉट के बराबर होगा उस पॉइंट का। और एब्सिसा तुम ले लो एक्स नॉट, एब्सिसा एक्स नॉट ले लो, ऑर्डिनेट एफ ऑफ एक्स नॉट ले लो, तो एक पॉइंट मिलेगा तुमको कर्व में। उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ओके, वो टेंजेंट कहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है उसको देख लो, वही x1 है। फिर उसी तरह से x1 पे तुम फंक्शन का वैल्यू निकाल लो और x1 और एफ ऑफ x1 पे एक पॉइंट लोकेट करो कर्व में, फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो कहाँ से कहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है देखो, ये तुमको x2 दे दिया। ऐसे ही चलते रहोगे तो तुम रूट के करीब आ जाओगे। Are you following what I said? You are starting with some initial guess which you call x0. Now then you have to see x naught is your, or x0, x naught is your initial guess. Now you calculate the value of the function at x naught, which is f of x naught. Now you consider locating the point on the curve whose abscissa is x naught and ordinate is f x naught. तो एक पॉइंट मिलेगा ना कर्व में, उस पॉइंट से from that point you draw a tangent to the x-axis and you see where the tangent is cutting the x-axis. So that is your point of inflection. Not point of inflection, rather point of approximation. Now once you get this point, which you are calling x1, then you calculate again the value of the function at x1, and again you put x1 along abscissa and f of x1 along ordinate. So you will get another point on the curve. From that point you draw a tangent to the x-axis and see where the x-axis is cutting where the tangent is cutting the x-axis. So you will get another point x2. This will be your next approximation. Then again, using x2 as the abscissa and f of x2 as the ordinate, you locate another point on the curve. And then again you see where after locating that point, you draw a tangent once again and see where the tangent is cutting the x-axis. So that will give you the next approximation. और ये कल चलते रहेगा जब तक कि दो approximation sufficiently close नहीं हो जाए। समझ गए क्या करना है? यस सर। कुछ नहीं है, एक गेस करोगे, एक गेस वैल्यू लोगे, वो गेस वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, और मतलब जियोमेट्रिकली तुम कर क्या रहे हो। अब ये दोनों एक एब्सिसा में जो गेस लिए हो एब्सिसा में रखो, उस गेस पे फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वो ऑर्डिनेट में रखो, तो एक पॉइंट मिलेगा तुमको जो कर्व में ही होगा, वो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और एक्स एक्सिस में कहाँ काट रहा है उसको देखो, तो तुमको अगला अप्रोक्सीमेशन मिल गया। जैसे ही मिल गया उस अप्रोक्सीमेशन में फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर उसी तरह से एक और पॉइंट मिलेगा तुमको, वहां पे फिर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ये सिलसिला चलते रहेगा जब तक कि तुम्हारा दो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन काफी करीब नहीं आ जाए, तब तक ये चलते रहेगा। ठीक है, इज इट ओके?
If it is okay, then see an example. X cube minus 5x square minus 29 rather is equal to 0. इसको solve करो न्यूटन रैप्सन मेथड से. Observe that f of 5 is minus 29 and x cube minus 5x square minus 29 is equal to 0. This is our equation. Of course, it is an algebraic equation. So observe that f of 5 is minus 29. इसमें x के जगह 5 रखो तो minus 29 आएगा. और f के जगह x के जगह अगर 6 रखोगे, x के जगह 6 रखोगे तो आएगा 7. कैलकुलेट करके देखो. x के जगह 6 रखने पे 7 आएगा, 5 रखने पे minus 29 आएगा. इसका मतलब 5 से 6 जाने में फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है ना. तो f5 into f6 is negative. Therefore, the real root lies between 5 and 6. So we can take 5.5 as our starting guess. Now, when you have taken 5.5 as your starting guess, then you calculate the value of the function at 5.5 and also calculate the value of the differential coefficient at 5.5. What is the differential coefficient? Differential coefficient is 3x square minus 10x. Because fx is x cube minus 5x square minus 29. So f dash x is 3x square minus 10x. So find out the value of f dash x when x is equal to 5.5. And also find the value of fx when x is equal to 5.5. तो फंक्शन का वैल्यू आता है -13.875 और उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का वैल्यू आता है 35.75. तो सब्स्टिट्यूट कर दो और न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला लगा दो. तो x1 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा 5.5 माइनस ब्रैकेट के भीतर -13.875 बाई 35.75. ये कैलकुलेट करके आता है 5.88. देख लो कैलकुलेशन सही है ना. प्लीज चेक दी कैलकुलेशंस. सब लोग अपना अपना ट्राई करते रहो क्योंकि एग्जाम में तुम्ही को बनाना होगा. अभी से ही प्रैक्टिस करो. 5.88 सही है ना रिजल्ट x1 का वैल्यू. इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Now you calculate the value of the function at 5.88. It comes out to be 1.425. And calculate the value of the differential coefficient at 5.88. It comes out to be 44.92. So again applying Newton-Raphson formula, the next approximation x2 will be 5.88 minus 1.425 divided by 44.92. And this comes out to be 5.848, which can be roughly taken as 5.85. ठीक है. तो अब 5.85 पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करो. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 5.85. इट कम्स आउट टू बी 0.089125. एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एट द पॉइंट 5.85. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 10x. इसका वैल्यू निकालो 5.88 पे. वो वैल्यू आएगा 44.1675. तो अब फिर न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला लगाओ. तो x3 का वैल्यू कितना आया? x3 का वैल्यू आएगा 5.85 माइनस 0.089125 divided by 44.1675, and this comes out to be 5.8479, which can be roughly taken as 5.85. तो पिछला भी 5.85 था up to 2 places of decimals. ये भी 5.85 ही आया
तो और आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, हम यहीं पे रुक जाते हैं और 5.85 को ही रूट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। चलो एक दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं। हाउ विल यू फाइंड द nth रूट ऑफ ए नंबर r using NR method? How will you find the nth root of a number r using NR method? Hence find the cube root of 113. This is the problem. So suppose I am required to find the nth root of a number r. That means I may let x is equal to r to the power 1 by n. nth root निकालने का मतलब है r कोई नंबर है उसका nth रूट निकालना है, उसका मतलब है कि हमको r टू दी पावर 1 बाई n का वैल्यू निकालना है। इसी को x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू r to the power 1 by n. So I have x to the power n minus r is equal to 0. Hence fx is my x to the power n minus r. This is the function x to the power n minus r is my function, and its differential coefficient with respect to x, that is f dash x, is nothing but nx to the power n minus 1. Nx to the power n minus 1. Now in the given problem, fx is equal to x cube minus 113 because I am required to find the cube root of 113. So n is my 3 here and r is my 113. R is 113 and n is 3. Okay, in the problem. So my function is x cube minus 113 and therefore f dash x is 3x square. F dash x is 3x square. अब चलो कैलकुलेशन शुरू करो. Observe that f4 and f5 are of different signs, opposite signs. f4 is positive, f4 is negative and f5 is positive. ठीक है, एक्स क्यूब तुम्हारा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 113 इज इक्वल टू 0. इसी को सॉल्व करना है. एक्स क्यूब माइनस 113 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है. एफ एक्स हो गया एक्स क्यूब माइनस 113, एफ डैश एक्स हो गया 3x स्क्वायर. अब f4 और f5 में तुम देख रहे हो साइन चेंज है. So root lies between 4 and 5. So we can take 4.5 as our initial guess. Now calculate the value of the function at 4.5 and calculate the value of the differential coefficient also at 4.5. Okay. तो वो सब कैलकुलेट करके न्यूटन रैप्सन मेथड लगा के हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो x1 आया उसका वैल्यू आया 4.86. देखो कैलकुलेशन थोड़ा चेक करके बताओ सही है कि नहीं. x1 4.86 आ रहा है कि नहीं देखो. आ रहा है. Are the calculations okay? Then we will proceed further. ठीक है, कैलकुलेशन सही है, देख लो, चेक कर लो.
आगे बढ़े जी। 4.86 पे ये सही है ना कैलकुलेशन? कैलकुलेट करके अपना देखो, चेक करो, बताओ। अब 4.86 पे फंक्शन का वैल्यू का कैलकुलेट करो और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को भी कैलकुलेट करो। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा 4.83। नेक्स्ट वाला आएगा 4.83, वो भी चेक करो 4.83। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सही है कि नहीं देखो, और फिर फाइनल कैलकुलेशन 8.83 आ रहा है, सॉरी 4.83 आ रहा है कि नहीं देखो। सही है। नेक्स्ट वाला। आगे बढ़े, देख लो एक बार, चेक कर लो। यस सर। सही है ना? आगे बढ़ा जाए। 4.83 पे फंक्शन का वैल्यू को कैलकुलेट करो और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का भी वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो फाइनली आएगा फिर से 4.83 ही आ जाएगा, इसलिए हम यहीं पे रुक जा सकते हैं। सो वी कैन स्टॉप हियर एंड टेक द रूट वैल्यू एज 4.83। 113 का तुम ऐसे भी डायरेक्टली क्यूब रूट निकाल के देखो कैलकुलेटर से, 4.83 ही आएगा। ठीक है। यस सर। सही है। अब इसके बाद एक और मेथड है, रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो आज तुम लोग अगर करना चाहते हो तो करेंगे, नहीं तो उसको नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एज पर योर विश। शुड वी डिस्कस और लीव इट फॉर द नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे करते हैं। नेक्स्ट डे ही करते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग बल्कि कुछ और डिस्कस करते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड में कुछ कुछ चीज़ का ध्यान देने का बात है, वो डिस्कस करते हैं, तब डिस्कशन हमारा कंप्लीट होगा। सबसे पहला चीज़ है कि न्यूटन रैप्सन मेथड फेल भी कर सकता है। तुमको ध्यान में रखना होगा कब न्यूटन रैप्सन मेथड फेल करेगा। देखो, एक तो तुम देख ही रहे हो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो अगर जीरो हो गया, जिस पॉइंट पे तुम निकाल लो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वो अगर जीरो हो गया तो फेल कर जाएगा, करेगा ना? करेगा कि नहीं? यस सर। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज तुम ध्यान नहीं दिए होगे, लेकिन अभी तुम्हारा ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे। यू सी, यू लुक एट द फार्मूला, you look at the derivation of Newton-Raphson method very carefully. When you are taking a guess x naught, you are making some error h. Now, how you are evaluating the value of h? To evaluate the value of h, the error that you committed in making the guess, to evaluate the value of that error, you have neglected terms of h higher than 2 and higher. So that you can do only when h is small. जैसे एरर जो है, एरर का मैग्नीट्यूड अगर 1 से कम है तो उसका पावर जैसे जैसे बढ़ेगा वो वैल्यू घटते जाएगा। तो इसलिए हम 2 एंड ऑनवर्ड्स हायर पावर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लो तुम जो एरर कमिट कर रहे हो
उसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा पावर जब बढ़ेगा तो एरर तो और बढ़ते जाएगा, तो तब तुम्हारा ये जो टर्म नेग्लेक्ट करने वाला बात है वो वैलिड नहीं होगा, तो तुम्हारा पूरा फॉर्मूला ही गड़बड़ा जाएगा, रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा उस केस में। इसका मतलब यह है कि हम न्यूटन रैप्सन मेथड तभी यूज कर सकेंगे जब हमारा स्टार्टिंग गेस जो है वो एक्चुअल रूट के करीब हो, तब एरर कम होगा, और एरर अगर कम होगा तभी हम हायर पावर्स ऑफ एरर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, But how to ensure that your starting guess is a good guess? How to ensure? तो उसका सबसे सिंपल ट्रिक तुमको बता दे रहे हैं। उसका ट्रिक है कि दो नंबर ए और बी ऐसा ढूंढो जिसमें कि साइन चेंज हो रहा है, तो नेचुरली ए और बी के बीच में ही रूट है, और उसके साथ साथ एक और कंडीशन लगा दो कि ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा नहीं है। तब क्या होगा कि तुम्हारा स्टार्टिंग गेस और रूट ये दोनों के बीच का डिफरेंस कम रहेगा, 1 से कम रहेगा, और तभी तुम हायर पावर्स ऑफ एच नेग्लेक्ट कर सकोगे। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? What I am saying is that you find out two numbers A and B such that f of A and f of B are of opposite signs. So naturally the real root lies between A and B. Further you impose the condition that the numerical difference between A and B is not more than 1. It is not more than 1. So in that case what will happen is, because your starting guess will be a plus b by 2 and the actual root also lies between a to b, and the numerical difference between a and b is less than 1 or at most equal to 1 but not more than 1, so it will mean that the difference between a plus b by 2, which is your guess value, and actual root which also lies between a and b, the difference between the guess and the actual value will be less than 1. Yes or no? yes, sir. दो नंबर तुम ऐसा चूज करो ए और बी जहां की फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है, तो नेचुरली रूट जो है ए और बी के बीच में है। अब तुम गेस ले रहे हो, ए और बी का मीन को तुम गेस ले रहे हो, ठीक है। तो a प्लस बी बाई 2 ये तुम्हारा गेस है, तो a प्लस बी बाई 2 जो है वो a और b के बीच में है, और जो तुम्हारा एक्चुअल रूट है वो भी a और b के बीच में है। ऐसी स्थिति में अगर तुम ये इंश्योर कर सकते हो कि a और b जो तुम सिलेक्ट किए हो वो तुम इस तरह से सिलेक्ट किए हो कि a और b के बीच का खुद का डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं है, तो फिर a प्लस बी बाई 2 और जो रूट का एक्चुअल वैल्यू है उनका डिफरेंस भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, नहीं ना होगा जी। क्योंकि a प्लस बी बाई 2 और जो एक्चुअल रूट है दोनों a और b के बीच में पड़ रहा है, और a और b का न्यूमेरिकल डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं है, तो ये दोनों का भी न्यूमेरिकल डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं होगा, नहीं ना होगा। Yes, sir. तो उस केस में तुम हायर पावर ऑफ एच नेग्लेक्ट कर सकोगे, तुम्हारा न्यूटन रैप्सन मेथड काम कर जाएगा। समझ में आया? तो ये प्रिकॉशन लेके तुमको चलना है। तुमको ऐसा दो नंबर्स पहले सिलेक्ट करना है जिसके बीच में की रूट लाई करता है, मतलब वहां पे साइन चेंज हो रहा है, वो तो मिल जाएगा, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 से कम रखो तो ज्यादा अच्छा है, मैक्सिमम तुम 1 तक रख सकते हो। उसमें फायदा क्या होगा
कि a प्लस बी बाई 2 जो कि a और b के बीच में पड़ेगा, और जो रूट का वैल्यू है वो भी a और b के बीच में ही है, इन दोनों का आपसी डिफरेंस जो है वो 1 से कम ही होगा, क्योंकि ये दोनों a और b के बीच में पड़ रहा है और a और b के खुद का डिफरेंस जो है 1 है या उससे कम है। तो इन दोनों के जो गेस है और जो ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का भी बीच का डिफरेंस 1 से कम होगा। इसका मतलब तुम हायर पावर्स ऑफ एच जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हो। लॉजिक क्लियर टू यू? हाँ सर। क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड में Yes, ये sir. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है न्यूटन रैप्सन मेथड में कि तुम शुरू कहाँ से कर रहे हो। ऐसा जगह से तुम शुरू किए कि तुम्हारा फॉर्मूला ही गड़बड़ा गया या कन्वर्जन नहीं किया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 आने लगा। ये सब प्रॉब्लम चीज को ध्यान में रखना। ये सब प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी साइक्लिंग भी हो जाता है। एक गेस वैल्यू से जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाले, फिर उस पर जो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला करने गए तो फिर से वो पहला वाला गेस वैल्यू आ गया, तो तुम साइकिल करते रहोगे, दो वैल्यू के बीच में पेंडुलम की तरह घूमते रहोगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वैसा भी हो सकता है। इस तरह से, इसलिए शुरू कहाँ से कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा तुमको केयरफुल रहना पड़ेगा। पहला जो गेस वैल्यू ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, पूरा कोशिश करो कि गेस वैल्यू जो है वो कोई दो नंबर के बीच में है जहाँ की साइन चेंज हो रहा है, और प्लस उन दो नंबर का आपसी डिफरेंस, न्यूमेरिकल डिफरेंस 1 से ज्यादा ना हो। ये अगर इंश्योर कर सकते हो तो न्यूटन रैप्सन मेथड काम कर जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। समझ में आया हम क्या बोले? यस सर। क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए हम बता दे कि इस तरह का जितना भी मेथड्स है, चाहे बाइसेक्शन मेथड हो, न्यूटन रैप्सन मेथड हो, या रेगुलर फॉल्सी मेथड हो, सिकेंड मेथड हो, कोई भी मेथड हो, वो सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरह का सभी मेथड में तुम शुरू कहाँ से कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा स्टार्टिंग गेस अच्छा होना चाहिए, और स्टार्टिंग गेस को अच्छा करने का सीधा तरीका है कि दो ठो नंबर ए और बी ढूंढो जहां पे कि साइन चेंज हो रहा है और वो दो नंबर का आपसी डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं है, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। बनेगा ना? इसमें और कुछ पूछना है? जियोमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया? जियोमेट्रिकल मीनिंग कुछ नहीं है, जो तुम गेस वैल्यू लिए वो गेस वैल्यू पे ही फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करो। गेस वैल्यू को एब्सिसा में रखो, फंक्शन का वैल्यू को ऑर्डिनेट में रखो, और एक पॉइंट तुमको मिलेगा जो कर्व में ही होगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। वो टेंजेंट जहां काट रहा है एक्स एक्सिस को, वो तुम्हारा अगला गेस दे देगा। जैसे ही तुमको अगला गेस मिला, फिर उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और फिर वो गेस वैल्यू को रखो एब्सिसा में, फंक्शन का वैल्यू को रखो वाई एक्सिस में, एक पॉइंट लोकेट करो कर्व में, फिर उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है देखो, वो अगला अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। ऐसे ही चलते रहो, धीरे धीरे तुम रियल रूट के करीब आ जाओ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, वी आर रिप्लेसिंग द पार्ट ऑफ द कर्व between x0 and f of x0 and the x-axis
by the tangent at the point. This is what we are doing. That's all. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. किताब से अलग अलग एग्जाम्पल बनाओ न्यूटन रैप्सन मेथड का. सभी में ये चेक कर लेना पहले कि दो नंबर तुमको ऐसा मिल रहा है कि नहीं जहाँ पे फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है, और वो दो नंबर बहुत क्लोज होना चाहिए, उसका बीच का डिफरेंस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये अगर इंश्योर कर सकते हो तो फिर तुम न्यूटन रैप्सन मेथड चला सकते हो. ठीक है. तो आज के लिए फिर इतना ही रहने दो. अगर कुछ तुमको डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम क्लोज करेंगे अटेंडेंस लेके. रेगुलर फॉल्सी मेथड नेक्स्ट डे देखेंगे. फिर सेकंड मेथड भी है, उसके बाद ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, फिर एक क्विज ले लेंगे, है ना. If you don't have any doubt, then you can close for today. Is there any doubt? No, sir. No, sir. ठीक है. ये nth रूट ऑफ ए नंबर निकालने का जो मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये अलग अलग वैल्यू के लिए तुमको निकालने आना चाहिए, और एक्चुअली तुम वो रूट निकाल के कैलकुलेट करके देख भी ले सकते हो कि वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं. ठीक है. तो न्यूटन रैप्सन मेथड में कुछ प्रिकॉशंस तुमको ध्यान में रखना होगा. तुम ऐसा एक गेस लिए जहाँ फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो काम नहीं करेगा मेथड, डिवीजन बाय 0 हो जाएगा. कंप्यूटर भी तुम्हारा एरर दे देगा, डिवीजन बाय 0. You have got to be very careful about these things. So if you have understood Newton-Raphson method and bisection method, two methods you have understood, try to solve some more problems from the book. ठीक है, that will give you good practice. एग्जाम में नंबर ऑफ आइटरेशंस दिया रहेगा, उतना ही आइटरेशन तुमको शो करना है. So let us close for today. अटेंडेंस देने के बाद तुम लोग मीटिंग लीव कर सकते हो. थोड़ा अटेंडेंस लेने दो. Now I am closing.